Thank you everyone for tuning in again. And आज podcast पे we have a famous musician. If you are really into Pakistani rap, हमारे साथ इनकलाब है. And if you're into niche music, specifically Pakistani rap music, I don't mean the commercial stuff. I mean you're actually a rap lover and you know what you're talking about. So you probably already know him. If not, please do your research. So how have you been? इनकलाब कैसे चल रहा है? What are you working on? I'm working on quite some music. Thank you for having me. और एक इस्लाम में करता चलूँ कि I'm not that famous, music wise. Yeah, battle rap wise, some people know me. But yes, I'm working on my music. Let's hope that, we proceed into the music and stuff like that. So. अच्छा, I feel like मसला ज़्यादा ये है कि commercially rap music isn't as encouraged. क्योंकि जब pop music की बात आती है, stars are very dispensable ना. जबकि rap music में ये होता है या कोई भी ये niche genre आ जाता है तो उनकी एक following बन जाती है और वो लोग उनके साथ रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे artist grow करता है उनकी ऑडियंस या उनकी फॉलोइंग उनके साथ ग्रो करती है. जबकि पॉप म्यूजिक आपको पता है इट्स स्पेसिफिकली एम्ड एट टीनेजर्स. वंस यू आर नॉट अ टीनेजर एनीमोर, द म्यूजिक इजंट रेलेवेंट एंड यू आर नॉट गोना लिसन टू देम. और फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी यू आर गोना फाइंड अनदर स्टार फॉर इट. और लाइक दैट्स जस्ट हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स नाउ. लाइक कमर्शियली इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर देम. बेसिकली यार रैप का या हिप हॉप का ये सीन है कि इट्स मोर ऑफ अ कल्ट, क्योंकि एक इसका हिप हॉप या रैप या इस सिंफ की जो खूबसूरती है कि बहुत नेचुरल है, बहुत स्पॉन्टेनियस है. एक वन ऑफ द वेरी फर्स्ट रूल्स ऑफ हिप हॉप इज़ टू नॉट हैव एनी रूल्स. देयर आर नो कंस्ट्रेंट्स. यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग इन एनी वे. दैट इज़ योर एक्सप्रेशन. नो वंस गना. सो आई गेस कमर्शियल इंडस्ट्री को इसलिए सूट नहीं करता. उसमें आप कुछ भी किसी भी किस्म की बकवासियात कर सकते हैं. सो दैट्स प्रीटी कूल विद the people. और आपने जैसे बोला कि about the audience, so audience definitely साथ साथ grow करती है, but the case of audience for hip hop is more like a cult following, like people who are ready to digest the music in its purity, in its raw most form. So that's what's up. I guess like इसी वजह से it's far more relatable ना. Because you're talking about issues that actually affect everyone. What 12-year-old is actually worried about the things pop music tells you about? मतलब या तो कोई remix होगा which they really don't have the maturity to grasp. Like till today, even though I'm a music lover, I'm very comfortable admitting कि ग़ज़ल और इस टाइप की चीज़ें they're way out of my league. Because एक तो उसे समझना is really difficult. ऊपर से the music isn't really something I can vibe with. So I'm not like just because you don't like a certain kind of music doesn't mean it's not good ना. इसका ये मतलब है you just don't vibe with it. A lot of people are like EDM is trash. Not really. Say like I love all kinds of music, EDM included. Of course, like I have my biases because like psytrance, deep trance are more my thing, या फिर dubstep compared to something more mainstream like Chainsmokers जो कि majority लोग सुनेंगे. लेकिन the thing is I won't trash someone else for liking that music. मैं कह दूंगी कि हाँ your tastes are more mainstream या like you're more into like commercial art, easily digestible stuff ना like. सही. लेकिन I feel like हर किसी की इतना वो maturity level नहीं होता है कि you can admit कि नहीं I'm not at like I haven't reached a level where I can appreciate a certain kind of music. जिस तरह folk music की भी ये बात आती है. ये ग़ज़लें obviously like a very common example. इसके अलावा like another genre that I had to like grow into was country music. Like now that I'm older, I actually appreciate when artists are singer-songwriters. Even though I've been listening to Taylor Swift since I was 12
and like उसकी identity ही ये है कि she's like a singer songwriter, and like her music is famous because of like how emotive her lyrics are, or how she draws on her own experiences to like write her songs. Lekin it took me like a really long time to actually appreciate that craft and like grow into country music, जो कि majority लोग नहीं करते. मुझे ज़्यादा मसला तब होता है when you take a genre of music you really don't understand, you try and commercialize it, but you're actually doing a disservice to the art form. So like एक्सप्रेशन फिर वही है ना, मतलब म्यूजिक की जो या फिर आर्ट की जो बेसिक नीड और डिज़ायर टू आर्ट इज़ लाइक द डिज़ायर टू एक्सप्रेस. और जैसा तुमने बोला कि यार यू कैन नॉट रिलेट विद कवाली और यू नो गज़ल और फोक म्यूजिक. अब आई गेस पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में वी मिस आउट ऑन फोक म्यूजिक और सूफी म्यूजिक और लाइक गज़ल्स एंड स्टफ लाइक दैट. उसकी रीज़न जो मुझे समझ आती है, जो मैं समझ पाया हूँ, कि मोस्ट ऑफ यू नो कवालीज और गज़ल्स और फोक म्यूज़िक इज़ इन यू नो इज़ इन रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस. लाइक अब तुम खुद देख लो उर्दू का क्या हाल है. लाइक Exactly. वो फिर लैंग्वेज बैरियर है जिसकी वजह से लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते. सो आई गेस दैट्स द रीज़न मेरे नज़दीक. एंड हाँ, अबाउट द थिंग लाइक वी वाइब विद यू नो, हम उसी चीज़ की तरफ जाते हैं जिस पे हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ना, लाइक जो हमसे ज़्यादा रिलेटेबल है. सो ठीक है, वो खैर उस तरफ नहीं जाता. अच्छा नहीं, लेकिन I feel like when it comes to mainstream music and people who follow it, it's more of like a bandwagon thing. कि like everyone's doing it, so like I'm in on it. ये नहीं होता कि you actually like truly appreciate the art form. अच्छा हाँ, I want to clarify कि I actually love Sufi and folk music. I know. Like I can relate to it despite the language barrier, and I can connect with it. लेकिन जब like गज़ल की बात आती है, I feel like because I struggle with emotional expression, I'm not comfortable with गज़ल as much. Whereas I love how folk music has this way of storytelling. हाँ. That's something I really love about it. So like हाँ, वो यार गज़ल का जो मैं समझ पाया हूँ ना, लाइक एक मेरी सिंह जो है वो है कि मैं शायर भी हूँ. सो लाइक जो गज़ल का सॉरी लाइक लेम प्लग इन, बट गज़ल का ये यार कि गज़ल जब लिखी जाती है ना, लाइक मेरे अपने एक्सपीरियंस में, उसमें आप हज़ार कैफियत से गुज़रते हैं. उसमें आप लाइक पहला शेर आप कहाँ से शुरू करेंगे, इख्तिताम कहाँ पे होगा आपको नहीं पता. जैसे ये गज़ल थी मेरी कि ज़हूर से पहला शेर मक्ता उसका था कि ज़हूर से पहले कूच कर जाएं, बिन बताए या पूछ कर जाएं. लाइक अब थॉट इसके पीछे ये था कि किसी फेलो ने ना बोला था मेरे बारे में कि यार ये कहाँ से आ गया. तो फिर आई वाज लाइक हाँ भाई आप कह रहे हैं कि चले जाओ, तो फिर सर मैं जाऊँ क्या. लाइक ये शेर था, इसका मक्ता था ऐसे. एंड आखिरी शेर इसका ये था कि ताहिर जो कभी कुछ ना कर पाया, मौत आए तो शायद कुछ कर जाए. सो लाइक अब गज़ल का जो बेसिक सीन है ना, वो है एक नज़म में आप एक पाबंद होते हो. जब आप नज़म लिख रहे हो ना, या आप हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं बिलफर्ज, तो आपको पता है कि अच्छा भाई यहाँ पे मुझे इंट्रो देना है, यहाँ पे बॉडी होगी, यहाँ पे मुझे कंक्लूड करना है, मुझे रहना है इसी टॉपिक में, मैं जितने इसको फरोल सका फरोलूँगा. गज़ल में है कि हर शेर जो है वो एक और एक्सपीरियंस है. एक शेर में आप क्या बोल रहे हो, फिर एक शेर में आप क्या बोल रहे हो. तो गज़ल इज़ यू नो दैट्स वाई बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत बिखरी है, बड़ी मुंतशिर सी है, और वही उसकी खूबसूरती है. सो आई गेस some people cannot not like specifically targeting you or talking about you, but some people are not interested in ghazal, they lose focus क्योंकि वो भी एक कैफियत एक्सप्लोर कर रहे थे, अब वो दूसरी कैफियत लाइक वो एकदम से जंप करके एक और नई बॉडी में आना, फिर उसके साथ रेजोनेट करना, फिर अपनी साख, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. शायद मैं बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं चला गया. नहीं, it actually makes sense. Like when you explain it like this,
it theoretically makes sense, लेकिन like music is supposed to feed your soul ना. हाँ. If you can't vibe with it, समझ आपको बेशक है, it's still not gonna make sense. And I feel like because you're a poet and because you write ghazals, it really helps you with your rap battles. And तुम्हारा music is your music is more famous because of your rap battles compared to like your like वो singles or tracks. बड़ी बड़ी मज़े की बात तूने पकड़ी है यार. हाँ ऐसा है. अब देखो टू बी अ पोइट इज़ ना हर शायर को ये वहम है कि उससे बेहतर कोई नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वहम मुझे भी है. तो अब बीइंग अ पोइट आप गज़ल लिखते हो, आपको एक नई टर्म दे देते हो दुनिया को. आपको लगता है कि आपने दुनिया को नई इस्तिलाह दे दी है. फिर आप आईने में देखते हो जिगर तू बेस्ट है. लाइक वो कैफियत होती है. तो हाँ फिर वही रेफरेंसेस आप हर जगह दे रहे हो. अब जैसे तुम नहीं आपने आतंक सुना होगा, उसमें एक पार्ट था कि तर्ज़े बगावत रास आ गई आ गई आ गई की घड़ी. ठीक है, अब ये पता है कहाँ से था? ये मेरी गज़ल थी बड़ी प्यारी, जो अब मैं स्केप्टिक हूँ, मैं सुनाऊँ कि नहीं. उसका एक शेर था, खैर उसी शेर पे आते हैं कि आह के मुयस्सर आ गई थी वो आगही की घड़ी. आह कि मयस्सर आ गई थी वो आगही की घड़ी. वक्ती खुशी हमारी फिक्र हमारा विजदान ले उड़ी. तो लाइक हाँ उस तरह रेफरेंसेस काफ़ी होते हैं. और हाँ मुझे काफ़ी दोस्त बोलते हैं लाइक मेरा लाइक मुझे मैनेज करता है जिगर है. मेरी आतंक भी उसी ने की थी. हम सब का काम डायरेक्ट भी वही कर रहा है, हम सबको मैनेज भी वही कर रहा है. अवैस लव यू, सॉरी फॉर दैट लेम प्लग इन, बट वो मुझे कहता है ब्रो अपने पेन को डम डाउन कर थोड़ा, तू बहुत ऊपर लिख रहा है. ये क्या तू क्या बोल क्या रहा है, ये उर्दू 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 थोड़ा थोड़ा लाइक यूथ के लिए लेके आओ. पर मेरा उस पर पॉइंट ये है कि यार अगर मैं भी वही सब करना शुरू करूं कि जैसे एक बार है लाइक वो बहुत कॉमन है. लाइक आप रैपर नहीं हो अगर आपने वो बार नहीं फेंकी. वो बार ऐसे है कि मैं कर रहा हसल तो मैं करता स्ट्रगल तो मैं करता हसल. लाइक अब मेरा मसला ये है कि ये सब करें, ये मुझे नहीं करना. ये मेरी इंडिविजुअलिटी नहीं है, ये मेरा तशख़्ख़ुस नहीं है, ये मेरी इनफरादियत नहीं ज़ाहिर करा. तो फिर मैं उसमें अपनी एनर्जीज क्यों वेस्ट करूं जो मैं हूं ही नहीं. मुझे सब लोग कहते हैं इवन बैटल रैप वाइज मेरी बैटल्स में ना लाइक इफ तुमने बल्कि लाइक हाँ लाइक कभी सीन बना तुम विजिबली लाइक वो एनर्जीज विटनेस करोगी वेयर द ओपोनेंट इज लाइक तू फलाना लाइक फिर गाली 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 मिसोजिनिस्टिक बार. ठीक है, फिर मैं उसके मुकाबले में कोई हेर फेर के इतनी प्यारी स्कीम उर्दू तखल्लुला ब्ला 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 लेके आऊँगा और फिर ऑडियंस इज लाइक देयर इज अ डेड साइलेंस. और वो कोई लेम सी बात करेंगे तो फिर उस पर धक्के पड़ रहे होंगे, शोर उठ रहा होगा. एक बंदा आके मुझे याद है, एक ओपोनेंट ने मुझे ऐसे कोई बार मारा ना तो मैं तो खड़ा हुआ था, डेफिनेटली फील कर रहा था. जो भी ऑडियंस में से ना एक बंदा मुझे यूँ देख के कहता है क्या यार ये क्या लाइक वो थी कोई अजीब एनर्जी होती है. लाइक दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिप हॉप टू मी. इट्स वेरी नेचुरल. इट मेक्स यू कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन अनलाइक यू नो मैनी आर्ट फॉर्म्स जहाँ आपको आदाब मलहूज़े खातिर रखना होते हैं, जहाँ आपको काफ़ी चीज़ें ज़हन में रखनी होती हैं कि यार ये बोलना है ये नहीं, यूं एक्ट किया जाए और यूं नहीं. सो लाइक दैट्स व्हाई हिप हॉप इज़ वेरी ब्यूटीफुल. और हम आपने पहले बात की थी कि जैसे कमर्शियल इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन फिर बैंड वैगन की भी हम बात कर रहे थे. अब ये सीन आ गया लिटरली कि वो कि हम लोग आपस में अक्सर रैपर्स बात कर रहे थे खैर कि वट्टा उठाओ उसके नीचे रैपर पड़ा हुआ है. लाइक ग्लैमराइज इतना कर दिया है ना कि जी गाड़ी तो बच्ची तो ये तो वो, उसकी वजह से सबको लगता है कि यार मैं रैपर हूँ. लाइक इट्स नॉट लाइक दैट. People were killed for, you know, for just expressing themselves. People were
एक हमारे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से रैपर हैं MC कैश, परफॉर्म कर रहे थे और उसके बीच में पुलिस आ गई और उनको ले गई। लाइक मेरी जान ये कुर्बानियाँ दी हुई हैं और आप आके इस कल्चर को क्यों ख़राब करने में लगे हुए हैं। सो या दैट्स व्हाट्स अप। Yeah, I feel like a lot of people really don't understand, especially when it comes to like commercializing any art form, कि अगर आप वो करते जो सब कर रहे हैं, अगर आप वो ना करते जो niche है, we wouldn't really have this art form ना. Do you think rap would be so huge if rap engineers or Adil Umar didn't struggle when they did? अगर वो लोग भी उस वक्त कहते हाँ I'm into music, let's be a pop star, ठीक है, let's be a playback singer, तो we wouldn't even have rap. ठीक इसी तरह if like किसी भी like music form के जो pioneers होते हैं, for example like Vital Signs हो गया, जनून हो गया, if at the time they were like यार rock music यहाँ कोई सुनता ही नहीं है, तो मैं वो करता हूँ जो commercial है. Exactly. we would never have explored that art. Exactly. Like सयो नहीं ना होता यार. Exactly. सोचो माशरे पे कितना जुल्म होता, सयो नहीं मिला. हाँ, like इसी वजह से when it comes to like revolution or evolution, it's fueled by art, and when it comes to like commercializing art, we do a disservice in this regard. और मुझे लगता है कि साफ समझ आ जाती है when someone's just doing it for the clout, and if someone actually knows what they're talking about. For example, recently there's a television channel who shall not be named, and they have this rap competition. हाय चलो आ जाओ. तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके जो जजेस हैं, not one of them is a rapper, and I don't think you like one of them is maybe a musician. Yeah. One of them is a musician. बाकी जो आपके 3 judges हैं, they don't know about music in general, or they specifically don't know about rap. ठीक, इस शो के लिए how hard would it have been to like bring in someone like say क्या नाम है उसका, like bring in like चलो ठीक है, Like if you the don't want to be, pioneers of yeah someone who knows about it. Yeah, हाँ, I someone got who it. knows about it. बेशक आप pioneers नहीं लेके आना चाह रहे, you don't want to bring in Bohemia or like Adil Umar, ठीक है, लेकिन आप फिर भी किसी mainstream बंदे को तो ले आओ, आप Exactly. शमून इस्माइल को ही ले आओ. It's okay, लेकिन at least he is a rapper. We can give him नहीं that. प्लीज यार मैं पॉडकास्ट छोड़ के जा सकता हूँ. इज देयर एन ऑप्शन यार अबाउट द थिंग ना. देखो अब बात ये है कि कमर्शलाइजिंग हिप हॉप, अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ना बहुत लंबी तमहीद है जो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी सम अप करूँ. सीन ये है कि पाकिस्तानी हिप हॉप लाइक इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बोहेमिया अनडाउटेडली. अब उनका कंटेंट जैसा भी हो गया, लेट्स जस्ट नॉट गो देयर, सब देख रहे हैं. अच्छा, उस पे पहले मैं हंस रहा था, आपने वो बात की थी कि लोग नज़र नहीं रख रहे या फिर ये वो. उस पे एक शेर था कि इनकलाब उनको आंख से दिखाता गया जो कान से सुनते नहीं बहरे हैं. इट इज़ व्हाट इट इज़. लाइक अब सीन ये है यार कि हिप हॉप पाकिस्तान में ना बहुत पहले से है. अब जिन का हमने नाम लिया है, आदिल उमर, एक्स पॉलीमर, शाउट आउट टू बोथ ऑफ माय ब्रदर्स एंड शाउट आउट everyone who's been there promoting hip hop. I was a hip hop enthusiast back in the days, so like वहाँ से रैपर बना etc. लेकिन पॉइंट ये है कि ये सब लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में रैप को, हिप हॉप को बहुत प्यारे तरीके से पिच कर रहे हैं. they've been to places. देसी बैटल लीग या एक्स पॉलीमर डार देसी बैकपैक साइफर कर चुके हैं टीम बैकपैक के साथ, वन ऑफ द लार्जेस्ट हिप हॉप प्रमोटिंग एजेंसीज. सो लाइक अगर वो सब भी देख के कोई नज़र नहीं जमाना चाह रहा, और अब वो आ रहे हैं जब यूं कह लीजिए जब इंडिया में हिप हॉप बूम हुआ है पोस्ट 2017-18 जब गली बॉय आई है, तो व्हाट डू वी मेक ऑफ इट? लाइक being a part of this छोटी सी हिप हॉप फैमिली. आई नो कि मेरा इतना इम्पैक्ट नहीं है, मैं इतना फेमस नहीं हूँ, काम नहीं किया डेफिनेटली, सीधी बात है, लेकिन स्टिल आई एम अ पार्ट ऑफ इट. लाइक इट हर्ट्स मी कि यार ये हमें हक देने की बजाय
हमें भीख दे रहे हैं और हम उस भीख पे इक्तफा कर रहे हैं, विच इज़ वेरी हर्टफुल टू मी, क्योंकि वैसी शायरों की या रैपर्स की या हिप हॉप की खसलत में है कि हम झुकते नहीं हैं. Even artists like Jay-Z were, you know, disregarded क्योंकि वो कमर्शियल हो गए थे बाय द आइकॉन्स, वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट के. आई एम नॉट श्योर इफ दैट वाज Jay-Z, लेकिन जो लोग उस तरह का म्यूज़िक कमर्शलाइज कर रहे थे उन पे बड़ी तनकीद हुई है. लेकिन अब ये जिस शो की हम बात कर रहे हैं, इस शो में अब ऐसा है कि जूरी में तो नहीं है, लेकिन पैनल में हैं रैपर्स, हिप हॉप से मुंसलिक लोग हैं, मेरे बड़े प्यारे जिगर हैं, दोस्त हैं, और वो उन्होंने हिप हॉप को बहुत पुश किया है, बहुत प्रमोट किया है. लेकिन मुझे गिला ये यार कि मुझे राज़नों की, वो शेर नहीं है कि मुझे राज़नों की खबर नहीं, तेरी राहबरी पे सवाल है. तो लाइक आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ब्रो, लेकिन हम लोग ऐसे क्यों मान रहे हैं, हम लोग सहमत क्यों हो रहे हैं, हम कम पे क्यों इक्तफा कर रहे हैं, जब हम, चलो मैं तो नहीं था उस तरह से सीन में, आप सब थे, आपने देखा है कि भाई कहाँ से उठ के हिप हॉप कहाँ पे अब आन पड़ा है, आपने एवोल्यूशन देखी, आपने स्ट्रगल देखी है, अब माशाल्लाह आप तर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरी जान खुश रहें. लेकिन सहमत ना होइए, ये आर्ट फॉर्म भीख के लिए मेरे नज़दीक तो नहीं बना, ये आर्ट फॉर्म मेरे नज़दीक हक के लिए बना है. हक मिल जाए तो फिट है, मांगना पड़े तो हक हक नहीं है. सो अच्छा, आई फील लाइक आई वॉज अनअवेयर के पैनल पे हैं, लेकिन आई फील लाइक बेस्ड ऑन योर टारगेट ऑडियंस you're still doing it wrong. क्योंकि अगर पैनल पे हैं and they're not very visible, तो फिर why would people like me who actually enjoy Pakistani rap music, why would people like us bother watching your show? पहली बात तो ये कि Gen Z and millennials who don't watch TV. दूसरी बात ये है कि अगर आप कोशिश कर ही रहे हैं to like bring us into like your trying to expand and bring us into your audience, तो at least do it right now. Like I really don't need an actor telling me his Exactly. opinions about rap music when that person doesn't listen to rap music. Exactly. ठीक है, वो actor अगर, for example, if they talk about struggling as an actor, I would actually listen to them, or I would actually like their opinion would have some weight, because at the end of the Exactly. day, an opinion is an opinion. It's not even a fact. Exactly. ठीक, if you're coming in with opinions and you're not even coming in with facts, why would I bother? Because like why would I take advice from someone who I wouldn't want to trade places with? अब बात ये यार वही कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया चार्ट्स है ना, वही कमर्शियल हैं, प्रिटी लिटिल फेसेस देखते हैं. लाइक आई एम ऑल कूल विद यू नो कोई एक्टर अगर जज कर रहा है, लेकिन अब देखो इंडिया में उन्होंने गली बॉय के लिए लिया था, लीड रोल लिया था रणवीर सिंह को. रणवीर सिंह हिप हॉप एंथुसियास्ट है, वो रैप लिखता Exactly. है. तो लाइक आप किसी ऐसे बंदे को दो लाइक जिसको पता तो हो ना कि वो करने क्या जा रहा है. अब फिर दूसरे जो एक और जज हैं, लाइक उनके बारे में मशहूर है कि वो शायरी एंथुसियास्ट हैं, ठीक है, ही इज इनटू पोएट्री एंड स्टफ. और रमज़ान में एक क्लिप वायरल हुआ होगा, आपने हाँ, भी देखा, सभी ने देखा होगा. रमज़ान के अलावा भी होते हाँ रहते हाँ हैं. लाइक होते रहते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली शायरी पे था. लाइक वो एक शेर है, इस्लाशुदा शेर है, बहुत बड़े शायर, जॉन एलिया का शेर है, जॉन एलिया, और वो साहब कह रहे हैं कि वजन में नहीं है. भाई साहब, लाइक एक चीज़ ऐसी है जिसको आपको देख के लगता है कि यार हाँ आई नो दिस शिट, लेकिन आप फिर भी उस शिट में आपको पता ही नहीं है कि ठीक है कि नहीं. तो मुझे उस बंदे की क्रेडिबिलिटी पे इसलिए शक है. मैंने ये शो नहीं देखा एंड नीदर डू आई प्लान और इंटेंड टू वॉच द शो, क्योंकि मेरे नज़दीक ये मेरे कल्चर की तज़हीक है कि अगर मैं इसको सपोर्ट करूं, तनकीद के लिए भी देखूं, तो मैं नहीं देख रहा. लेकिन स्टिल यार, फिर एक और म्यूजिशियन साहब हैं, आई हैव ओनली हर्ड गुड थिंग्स अबाउट हिम, लाइक यू नो उनकी म्यूज़िक स्किल पता नहीं अब क्या है क्या नहीं, लेकिन ये सीन है कि यार
बंदे तो ऐसे रख लो जो बंदे के बच्चे हो, लाइक जिनको बेसिकली पता तो हो ना कि हम बात क्या करने जा रहे हैं, वो कुछ भी अलम गलम बक देंगे आके, और फिर क्या करें यार। बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू है लेकिन बहुत लंबी है, फरोलते फरोलते मैं नाम ले लूँगा और फिर मैं लेना नहीं चाह रहा Okay. ऑनेस्टली। सो लाइक Like I actually respect the fact that you don't like you won't and you don't watch it just to hate on it. And दूसरी बात ये कि even now you're restraining yourself because चलो ठीक है, if someone's opinion about music isn't really backed by a lot of understanding, they are credible in something else. Like they do hold credibility in Of their course. respective niche. Of So we course. can't really shit on someone like that. ऑफ कोर्स। Yeah. यार देखो, अब पता है दूसरी बात क्या है कि अब उसमें शो में गए हैं, अंडरग्राउंड के बड़े लड़के गए हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ देम, आई रियली रिस्पेक्ट दैट। लाइक अब मेरे जैसे बंदे, हम लोग शक में रहे, मैं शक में रहा, मैं कभी आगे नहीं आया, तो इनको देख के एटलीस्ट आई एम प्राउड कि यार दे आर मेकिंग इट, लाइक दे आर लिविंग देयर ड्रीम्स। देयर आर रैपर्स दैट आई नो पर्सनली ना, लाइक फेसबुक फ्रेंड्स, फिर म्यूचुअल्स हैं, फिर जूनियर्स हैं, कुछ शायद मुझसे पहले से हैं। लेकिन पॉइंट ये यार कि मेरी जान, जाओ ज़िंदगी जियो, ऐश करो, खुश रहो, शम्मा से शम्मा जलाओ, लेकिन मुद्दा सारा ये है कि कठपुतली ना बनो। मतलब मैं इसलिए नाम शाम लेने से डर नहीं रहा, आई डोंट केयर इन दैट रिगार्ड ना, You're doing it out of respect. आउट ऑफ रिस्पेक्ट। और यार देखो, मैं कौन हूँ किसी की उम्मीद तोड़ने वाला? किसी को एक उम्मीद मिल गई है, कोई जी रहा है अपनी जिंदगी। आई सी बॉयज यू नो फ्लाइंग टू इस्लामाबाद एंड बैक टू कराची एक ही दिन में, एंड दे आर लाइक रियली एंजॉयिंग देयर लाइव्स, लाइक चिलिंग आउट विद पीपल, दे आर हैविंग फन टाइम्स। मैं कौन हूँ किसी की उम्मीद तोड़ूं? बस वो एक है कि यार पिछले दिनों एक फेसबुक शिट पोस्ट की थी खुद कि यार मैं इनकलाबी शायर हूँ पर किसी को हर्ट नहीं कर सकता। ये बड़ा मसला है। सो Wow. ओवर टू यू नादिया। Like I feel like we've ranted enough for like one day. So like thank you so much for venting with me. और अभी like बहुत ज़्यादा हो गया है. I don't want to bitch some more. So like can I end this on a nazm? Like I really feel like expressing. हाँ sure. Like I have no qualms with you signing out. In fact, like sign out कर दो. So like यार ऐसा है कि एक नज़म है जो मैंने लिखी थी 2018 जुलाई में, 7-8 जुलाई डेट थी। कैफियत ये थी कि पाकिस्तानी हिप हॉप का बहुत बड़ा इवेंट था, सब मेरे दोस्त थे, परफॉर्म कर रहे थे, सनी, मोजी, डार भाई, पॉलीमैथ, हाशिम इसाक, हमज़ा, बहुत लड़के थे, नोमैलजी, 42 क्लिक, सब। तो लाइक मैं उसके बाद ना मैं ठहरा था लाहौर में अपने एक कज़न की तरफ ना। सो सीन ये था कि अब मैं वापस आ गया, अब मैं फील कर रहा हूँ कि यार हम सब एज फेलोज़ हैं, सब दोस्त हैं, मैं भी लिख सकता हूँ, मैं भी रैपर हूँ, मैं भी शायर हूँ, पर मैं ऑडियंस में था और लाइक बॉयज़ वर परफॉर्मिंग, दे वर लिविंग इट। सो लाइक वो कैफियत थी और मैं बड़े अंधेरे रूम में, लाइट गई हुई थी, लाहौर की गर्मी, 8 जुलाई रात 3 बजे नज़म लिखी थी बाउनवान भूख, जो अभी कल ख़त्म हुई है। तो इसलिए आई रियली वांटेड टू शेयर इट कि एक भूख है, एक भूख है पहचाने जाने की भूख, लोहा मनवाने की भूख, नाम बनाने की भूख। कभी निकलेंगे इस चार दीवारी से, उठा के सर आंख मिलेगी ज़माने से। कंधे झुके हैं, आंख है बोझल, खुदी भी मशकूक है। कमी है तलब की, एहसास की, जज्बात की। इन सहराओं से निकलेंगे, कठिन चट्टानों से निकलेंगे, हरे नखलिस्तानों में मिलेंगे वो हमसफ़र, वो रास्ते, वो खुदा हमारे जिन्हें तराश के देवता बनाते थे। पल्ले हमारे कुछ भी नहीं, कुछ भी तो करना आता नहीं। लफ्ज़ों से गहरा ताल्लुक़ है पर बात करने का सलीका नहीं। बस यही कलम है जिसकी स्याही का खाता नहीं। कभी तो शमशानों से दूर होंगे,
कभी तो मैखानों में ज़रूर होंगे, कभी तो हवाओं से ताजगी नसीब होगी, कभी हम नवाओं से चाशनी की उम्मीद होगी, कभी तो तारीकी भी रंग लाएगी, कभी नाउमीदी तंग आ जाएगी। कि एक भूख है, रस्मों की भूख, कस्मों की भूख, किस्मों की भूख, जिस्मों की भूख, इसमतों जहां पामाल हो चुके, गुलो राना इस्तेमाल हो चुके, और जब निकल चुके सब फाल, तो वही लिखा था जो सोचा था। कतबे पे सुबह बेदार का निशान कुरेदा सा खरोजा था। यकीन को इसी निशान की तलाश सी, इससे पहले कि अंगड़ाई टूटती हम बिखर के सवर गए, और अब वक्त आन पड़ा कि भूख में जाम नोश किया जाए। रूह शिनास थे फिर रूह पोश हुए, अब सरकशी सरफरोशी का एहतमाम किया जाए। अब हम होने को हैं सो होके रहेंगे, कि भूख जितनी बाकी है कामते जहां की तलब को काफी है, सो अब हम कर दिखाएंगे कि एक भूख है, खोने की भूख, रोने की भूख, न होते होते होने की भूख, सो हम हो चले। इस तरह पाइंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू यार, थैंक you for having me, and I'm really humbled to be here, and it was a good show. So Nee, thank you for being here to vent about this. for you, man, bros, for life. Hi Lamara. See, how's it? Thank you so much, everyone, for tuning in, and I really appreciate that you come here every week to listen to me and the people that I rant with. Thank you, and I would really appreciate if you subscribe and leave your comments because your feedback really matters.